میرا نام ارشد ہے اور حال ہی میں نوکری کے لیے شہر آیا تھا۔ جیسے ہی میں نے شہر میں قدم رکھا میں نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی۔ وہ اسے کہنے لگا میرے گھر کے پاس ایک عورت رہتی ہے اور اس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کا بیٹا پڑھنے کے لیے باہر کے ملک چلا گیا ہے۔ اس عورت کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا کیونکہ اس عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ یقیناً بہت بوڑھی ہوگی۔ اس کام میں مجھے تنخواہ کے ساتھ ثواب بھی ہوگا، اس لیے اگلے دن ہی میں اپنے دوست کے کہنے پر وہاں نوکری کے لیے چلا گیا۔ مگر جب میں نے مالکن کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ تو بہت جوان اور حسین تھی اور کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن اب میں اس نوکری کے لیے ہاں کہہ چکا تھا، اس لیے مجھے اپنا سامان لا کر یہاں رکھنا پڑا۔ مالکن کے بیٹے کے جانے کے بعد میں گھر میں مالکن کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ یہ گھر خالی خالی سا محسوس ہونے لگا۔ مالکن کے ساتھ گزرے وقت کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ اب مجھے اپنے قدم خود اٹھانے ہوں گے اور پوری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینی ہوگی۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے فوراً دوسری نوکری تلاشنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ 22 سال کی عمر میں اگر مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو مجھے زیادہ پیسے کمانے کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ میں اتنی جوان اور حسین مالکن کے ساتھ اس گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں غریب والدین کا بیٹا تھا، اسی لیے محنت مشقت میری مجبوری تھی، جبکہ مالکن کا بیٹا اس معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ اس کا مقدر بہت اچھا تھا۔ اسے 22 سال کی عمر میں بیرون ملک پڑھائی کرنے کا موقع ملا، جبکہ میں اپنے شہر میں نوکری کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میں اپنی قسمت کو الزام نہیں دینا چاہتا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ قسمت کس کی کیسی ہوتی ہے یہ طے نہیں کر سکتے، اور کسی کے پاس جو کچھ ہے اسے پانے کے لیے صرف محنت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی صورتحال کو قبول کیا اور پھر سے اپنی قسمت کو الزام دینے کے بجائے اسے درست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں مالکن کا خیال رکھنے لگا کیونکہ وہ اکیلی تھی اور بیٹے کے بیرون ملک جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ مجھے لگا کہ ایک نوکر ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں۔ حالانکہ آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ مالکن کے دل میں میرے بارے میں کچھ مختلف طرح کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کرتا رہا کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا مجھے کچھ اشارے ملے، ان کی باتوں اور رویوں میں تبدیلی آئی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بہت نزدیکی سے باتیں کرتی اور اپنے جذبات کو ظاہر کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے کچھ ایسے اشارے دیے جو مجھے بے آرام کرنے لگے۔ ان کی موجودگی اب مجھے پہلے جیسا سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مالکن شہر میں ایک اچھی نوکری کرتی تھی اور اکثر دیر رات گھر واپس آتی تھی۔ اس دن رات کو مالکن نے ہمارے لیے میرا پسندیدہ کھانا بنایا تھا۔ مالکن کی یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا اور وہ میری پسند کا خیال رکھ رہی تھی۔ یہ دکھاتا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی اچھے تعلقات بنانا چاہتی ہیں۔ اس رات جیسے ہی ہم کھانا کھا رہے تھے مالکن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میری پلیٹ میں ایک اور روٹی رکھ دی۔ مجھے یہ چھوٹا سا خیال بہت اچھا لگا کیونکہ یہ ایک اچھی مہمان نوازی تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد میں ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگا۔ یہ دیکھ کر مالکن مسکرائی اور بولی، تم بالکل پرفیکٹ لڑکے ہو۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا۔ مالکن کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن ہنستے ہنستے اچانک مالکن خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہوگی۔ مجھے مالکن کی اداسی سمجھ میں آئی تو میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مالکن اگر آپ کو اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے تو میں اسے فون کر دیتا ہوں، آپ اتنی اداس نہ ہو۔ مالکن نے دھیرے سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے بیرون ملک نہیں گیا، یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ مجھے اب اس کی یاد میں خاموش نہیں بیٹھنا۔ پھر مالکن کی آواز میں اچانک کچھ تبدیلی آئی۔ وہ تھوڑا سا رک کر بولی، میں سوچ رہی تھی کہ تم کتنے پرفیکٹ ہو۔ اگر تم بار بار مجھے اس طرح امپریس کرتے رہو گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تم مجھے بار بار اس طرح سے امپریس مت کیا کرو، نہیں تو پھر مجھے سنبھالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مالکن پلیٹ لے کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ وقت تک میں وہیں کھڑا رہا اور مالکن کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مالکن کے اس اچانک بدلے ہوئے رویے کو کیسے سمجھوں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن شاید الفاظ میں پوری بات نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر دھیرے دھیرے اپنے خیالات میں کھو گیا۔ مالکن کے ان الفاظ نے میرے دل میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ میں غریب سا نوکر تھا، مگر مالکن دن بہ دن مجھے اپنے اور زیادہ قریب کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آخر میری مالکن مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ کیا وہ واقعی میری تعریف کر رہی تھی یا پھر کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی؟ کیا مالکن کا یہ رویہ عام تھا یا کسی گہری جذبات کا نمائندہ تھا؟ ان سب سوالات نے مجھے الجھن میں ڈال دی اور میں یہ سوچنے لگا تھا کہ اس رشتے میں آگے کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات میں ضرور سمجھ لی کہ مالکن کے ساتھ یہ رشتہ اب صرف
एक आम रिश्ता नहीं रहा, कुछ और था जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मालका ने मेरे सामने अपनी खूबसूरती का असर डालना शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर वर्जिश करती थी और जब मैंने उन्हें वर्जिश करते देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उनके जवान दिखने का राज क्या है। उनके चेहरे और जिस्म की ताजगी को देखकर मैं ये समझने लगा कि वर्जिश ही उनकी असल खूबसूरती का राज है। मुझे मालकन की तरफ एक अनदेखी कशिश महसूस होने लगी। हालांकि मैं उसे फौरन कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे अक्सर अपनी खूबसूरती से मुतासर करती थी। कुछ दिनों बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। मालकन का बर्ताव मामूल के मुताबिक था, लेकिन मुझे मालकन की मुस्कुराहट बार बार याद आ रही थी। क्या वो वाकई आम तरीके से बात कर रही थी या फिर उनकी कोई और ख़ास मकसद था? ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। मालकन बहुत सादा कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी औरत की ऐसी खूबसूरती देख रहा हूँ। इस वक्त भी मैं बार बार मालकन की तरफ देख रहा था। वो मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो, चलो अब जल्दी करो। मालकन की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उसके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कांधों पर रख दिए। मार्केट में जहाँ भी उन्हें जाना था मैं उन्हें वहाँ लेकर जा रहा था। घर वापस आने के बाद मालकन ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें अपना नौकर कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बिल्कुल मेरी फैमिली बनते जा रहे हो, क्योंकि तुम हकीकत में बहुत अच्छे इंसान हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जहाँ जहाँ मुझे जाना था तुम मुझे वहाँ वहाँ लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो मेरा अपना बेटा मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल जाना पड़ता है, जबकि वो गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग उठाए और मुझे हर जगह गाड़ी पर बैठा कर लेकर गए, जिससे कि मेरा काफ़ी वक्त बच गया। इसके बाद आते वक्त उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी, बजाय मेरे गालों को प्यार से खींचने के। ये सब बहुत आसानी से हुआ, लेकिन इसका मेरे दिल पर गहरा असर होने लगा। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी ख्याल में खो गया, एक जगह खड़ा रहा। इसी दौरान मालकन ने सूट पहनकर मेरे सामने आकर कहा, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो मालकन ने नया सूट पहना हुआ था। जब अच्छी तरह से तैयार होकर आई तो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आ गई। उस दिन मालकन ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया। मालकन मुझे अपने ऑफिस क्यों लेकर जा रही थी? ये उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम मालकन के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अपनी मालकन का ये अजीब बर्ताव मुझे समझ नहीं आया। वो मुझे अपना नौकर नहीं समझती थी, मगर मैं उनका नौकर ही तो था। मालकन के ऑफिस में कई लोग हमें मुख्तलिफ निगाहों से देख रहे थे। वो देखने में इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझे सिर्फ अपने कमरे में ले गई और फिर मुझसे कहा, ओह मैं तुम्हें अपने बॉस से भी मिलवाती हूँ। फिर वो मुझे अपने बॉस के कमरे में भी ले गई। उनके बॉस हमें अजीब निगाहों से देख रहे थे। मालकन ने बॉस से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये अरशद है, ये मेरे घर में मेरे साथ रहता है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा तारुफ कर दिया। किस नौकर का तारुफ ऐसे कौन कराता है भला? बॉस से मिलाने के बाद मालकन मुझे बाहर ले आई और मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मालकन के ऑफिस में मैंने उनसे कोई सवाल न कर सका। जब शाम को घर आया तो मालकन का बर्ताव थोड़ा अजीब था। घर आते ही मालकन ने मुझे गले लगाकर कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। ये सुनकर मैं मालकन से कुछ कहने लगा था, मगर उसी वक्त बादल जोर से गरजे और तेज बारिश होने लगी। मैं बाहर आ गया। मालकन बारिश में भीगने से डर रही थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने के लिए कहा। बारिश का मजा लेते हुए उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। मालकन के बारे में मेरे दिल में क्या एहसासात आ रहे थे ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मालकन जैसे किसी जवान लड़की की तरह बारिश में भीगने लगी। वो बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब मालकन ने मुझसे कहा, अरशद तुम वाकई बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कम उम्र लड़की हूँ। मालकन ने ये सब बातें बड़ी सहूलियत से कह दी, लेकिन मेरे दिल पर इसका असर कुछ अलग ही तरह से होने लगा था। तब हमारी नजरें मिली और मालकन मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी। तब मैंने उनसे पूछा, मालकन आपने अपने बॉस से मेरी शनाख्त नौकर कहकर क्यों नहीं करवाई थी? इसका मतलब क्या हुआ? ये सुनकर मालकन एकदम से चौंक गई और वहाँ से चली गई। लेकिन रात को सोने के वक्त मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो?
मदद के तौर पर मैं मालकन के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात मालकन के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे में जासूसी कर रहा हो। मेरी नजरें कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थी। सोने से पहले मैंने मालकन की तरफ देखा तो वो मुझे नजर आई। मालकन ने कहा, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर मालकन ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। शायद ये हमारा वहम हो। ये कहकर मालकन ने सोने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद ही अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने माँ की आवाज़ लगाई। इस आवाज़ से मेरी और मालकन की नींद खुल गई। उठकर देखा तो मालकन का बेटा सामने खड़ा था। वो हमें देख रहा था। वो अपनी माँ से बोला, माँ ये तुम क्या कर रही हो? अरशद हमारा नौकर है। इस तरह की बातें तुम्हें सेफ नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें माँ कहने पर भी शर्म आ रही है। मैंने मालकन के बेटे से कहा, तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। मालकन को डर लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन मुझे मालकन के साथ देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। मालकन का बेटा अपनी माँ पर नामुनासिब बातें करने लगा। उसे सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अचानक घर नहीं आया, बल्कि ये इसका कोई मंसूबा था। मैंने मालकन के बेटे से कहा, इस छोटी सी बात पर तुम मालकन पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम तो बैरून मुल्क गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर मालकन के बेटे ने कहा, मैं बैरून मुल्क नहीं जा सकता क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। माँ से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसीलिए मैं अपने चचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने माँ को ये नहीं बताया था कि मैं चचा के पास गया हूँ। उस दिन जब मैं चचा के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे चचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का किसी गैर मर्द के साथ गलत ताल्लुक है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं बनती थी। मेरे बाप के ना होते हुए भी माँ इतनी सच सच कर रहती थी, लेकिन ये किसके लिए? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चचा ने मेरी आंखें खोल दी। तब मैंने फैसला किया कि मैं माँ पर नजर रखूंगा। इस दौरान माँ ने तुम्हें नौकर रख लिया मेरे मंसूबे के मुताबिक। मैंने कहा, मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ, इसलिए माँ ने तुम्हें नौकर रख लिया। मुझे पता था कि मेरी माँ का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगा और तुम दोनों के दरमियान जो चल रहा था वो मुझे समझ आ गया था। मैंने तुमसे इसका जिम्मेदार नहीं मानता। असली गलती मेरी माँ की है। उसकी नीयत खराब थी, तुम तो बस उसकी बातों में आ गए हो। मालकन के बेटे को खामोश होते देख मैंने उससे कहा, तुमने अपनी माँ पर इल्जाम लगाया, अब खुश हो गए हो? अब बोलो, क्या कुछ बाकी है? अगर बाकी कुछ है तो वो भी कह दो, क्योंकि अब तुम्हें और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा, तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वो तुमने नहीं देखा। मालकन मुझे अपने ऑफिस लेकर गई थी क्योंकि उनका नया बॉस उन पर गलत नजर रख रहा था। वो मालकन को तंग कर रहा था। मालकन को अपने बॉस को ये दिखाना था कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वो मुझे ऑफिस लेकर गई क्योंकि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई फर्क नहीं करती। मैं भी तुम्हारी तरह 22 साल का हूँ। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से माँ के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं निकलते। मैं और भी बोलने ही वाला था कि तभी मालकन ने मुझे चुप कराया। वो आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरशद, तुम्हारे पास जो समझ बूझ है शायद वो मेरे बेटे में नहीं। मैंने उसे कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत करने नहीं दी ना। मैंने उसे हर चीज़ वक्त पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर बेएतमादी करके चुकाया। मालकन की ये बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि मालकन ने अपने बेटे को जितना प्यार और सहारा दिया था उसके बदले में उनके बेटे ने अपनी माँ को ही समझा नहीं। मालकन ने अपने बेटे के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जब बेटे की जिम्मेदारी आई तो वो अपने खुद के रास्ते पर चल पड़ा और माँ के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। फिर मालकन ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे चचा चची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे दरमियान फासला ला सके। तुम्हारे चचा के पास जाकर मैंने तुम्हारे बाप की जायदाद का हिस्सा मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैंने अदालत में लेकर जाकर दिखाऊंगी। जो मैंने तुम्हारे चचा से तुम्हारे बाप का हक मांगा था वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का ये सिला दिया। बेटे मालकन की ये बातें सुनकर उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए मालकन से माफी मांगी। मालकन भी एक माँ थी, उन्होंने फौरन अपने बेटे को माफ कर दिया। मालकन के बेटे को अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसने मुझसे कहा, मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने क्या किया था। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर में हमारे साथ हमेशा रहो। ये सुनकर मैंने मालकन के बेटे से कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ रह सकता था, लेकिन अब तुम्हारी माँ और तुम दोनों को वक्त की जरूरत है। तुम्हें अपनी माँ की मेहनत और कुर्बानी समझने का वक्त चाहिए।
میں بچپن ہی سے غربت کو دیکھتا آیا ہوں اور تب سے میں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں۔ شاید تمہیں یہ نہیں دیکھتا، لیکن تمہاری ماں نے ہمیشہ تمہارے لیے اپنی ساری خواہشوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا وہ سب کچھ صرف تمہارے لیے نہیں تھا؟ مالکن کا بیٹا خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ اسے اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے اور اس کی ماں کے رشتے میں جو دراڑ آئی تھی وہ صرف اس کی غلط فہمی اور دوسروں کی باتوں کا اثر تھا۔